السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 66 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ المائدہ آیت 11 سے آیت 20 تک۔ حضرت سمیرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی جو سیاہی ہے، جو انک ہے، اور شہداء کا جو بلڈ ہوگا، جو خون ہوگا، اس کو تولا جائے گا۔ اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں ان سب نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ علماء کی جو سیاہی ہے تو ان کی جو شہداء کی جو خون سے بھاری ہو جائے گی، یعنی کہ جو شہید ہوئے جنہوں نے اپنا خون بہایا اللہ کی راہ میں، اور لیکن دوسری طرف ایک جو عالم ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، پھر وہ اسٹوڈنٹ وہ لکھنے لکھانے سے ہی تو دیکھیں علم حاصل ہو جاتا ہے نا۔ کوئی بھی آپ ایجوکیشن کی طرف اگر آپ جائیں گے، کسی بھی علم کے فیلڈ میں آپ جائیں گے، بغیر لکھے تو کام نہیں چلنے والا نا۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے میں جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنا جو پین چلاتا ہے ایک کاغذ پر، اور اس میں چلنے سے جو انک خرچ ہوتی ہے، جو اس کی سیاہی خرچ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ اعمال نامے میں تول دی جائے گی۔ اور اس کی جو بتا دیا گیا کمپیریزن کس کے؟ شہداء کے خون سے۔ شہید کے جو خون سے بھی ایک عالم کی جو سیاہی ہوگی وہ بھی بھاری ہو جائے گی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ نا، کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اسے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ مائدہ آیت 11 to 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کے انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر دیا ہے، جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جبکہ ایک جماعت نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر ہاتھ اٹھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو دراصل کفار جو مکہ تھے، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے انہوں نے حد درجے کی کوشش کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے تک کی بھی انہوں نے کوششیں کر ڈالی، اور وہ چاہتے تھے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور انہوں نے بہت ساری اس کے لیے پلاننگز کی، منصوبے بنائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل اور رحمت ہوا کہ انہوں نے ان کے ہر پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ ساری پلاننگ، سارے منصوبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناکام کر دیا، فیل کر دیا۔ اور حضرت مفسرین اکرام اس آیت سے سبب سے نزول کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے جو مفسرین ہیں سب کا یہی قول ہے کہ جو یہ آیت ہے نا، اس کا جو شان نزول کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جو غزوہ ہے، اور وہ غزوے کا نام ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک منزل پر قیام کیا، انہوں نے ان سب نے قیام کیا، اور لوگ الگ الگ ہو گئے اور درختوں کے سائے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے تھے اور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے اور آرام فرمانے لگے، اور آپ نے ہتھیار درخت پر لٹکا دیے تھے، یعنی کہ جو تلوار تھی وہ درختوں پر سب نے اپنی لٹکا دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پہ درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی۔ تو دشمنوں میں سے ایک جو شخص تھا اس کو اچھا موقع سمجھ کر ان کے قریب آیا، اور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا، اور میان سے تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں ینمؤک منی، یعنی کہ تم کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ یعنی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ کرنا چاہا، اور یہ بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک نہایت اطمینان سے فرمایا کہ اللہ۔ تو اس شخص نے پھر وہی کلمہ دہرایا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اتنے میں جبریل امین آئے اور اس کافر کے سینے پر ایک مکہ مارا، جس سے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور پھر اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنا راستہ لے لے، اور اسے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کو کچھ بھی سزا نہیں دی۔ اس حال کو دیکھ کر وہ دیہاتی شخص کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کو بھی بلا کر یہ سارا قصہ بتلایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کچھ صحابہ سے اس آیت کی تفسیر نقل کی گئی ہے کہ کعب بن اشرف یہودی نے مدینہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور یہود کی ساری سازشیں کیا ہوئیں؟ خاک میں مل گئیں، فیل ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے کہ کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ تو یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو اور اے ایمان والو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم؟ کتنی خوبصورت آیت ہے نا، کہ آج دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم بس اللہ سے ڈرو اور تمہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد آیت 7 میں ہی یہی آیت آتی ہے کہ ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کے وفادار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوں۔ جب ہم اپنا فرض کو پورا کر دیں گے تو پھر ہمارا جو اللہ ہے وہ حق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی ہماری حفاظت کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنی مدد ہمارے لیے مدد کے دروازے کھول دے گا اور آخرت میں عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو اس وقت ہمیں فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس کی نہیں ہے کہ کون ہمیں نقصان دے گا نا۔ آج امت مسلمہ کو تو اسی کی فکر ہے کہ کون کون ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کو کون نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں۔ تو فکر ہمیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اس نے ہمیں کہا ہے کیا وہ ہم سب کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے کرنے کو کہا ہے، جس دین پر چلنے کو کہا ہے، کیا ہم ان احکامات کو بجا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو ہم مان رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ڈر اور خوف آج مسلمانوں کو کس سے ہے؟ غیروں سے ہو گیا نا، اور جبکہ ان کو ڈرنا کس سے چاہیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ آیت 12 ترجمہ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، پھر اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے انکار کیا تو وہی راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے اور اہتمام کے تاکید سے یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے ہیں نا، اس کو پیمان کو پورا کرنے کے لیے اہتمام اور تاکید کے لیے یہاں بات دلائی جاتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو عہد اور پیمان جس کی پابندی کی تاکید بار بار تم سے کی جاتی ہے خاص تمہیں سے لیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھی نا ان سے بھی یہی وعدے لیے گئے تھے، جن کے خلاف کام کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی قہر نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا اور ان کو طرح طرح کی بلاؤں میں وہ گرفتار کر لیے گئے، سختی اور ذلت اور مار ان پر چسپاں کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی وعدے و میثاق لیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑ دیا، نافرمانی کی۔ پچھلی امتوں سے جو وعدے لیے گئے تھے، جو عہد لیے گئے تھے، عہد پیمان سنانے اور ان کے خلاف ورزی پر ان کو سزا ملنے کی بیان کرنے کا مقصد دراصل کیا ہے؟ مسلمانوں کو ڈرانا ہے کہ دیکھو کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ ان کی طرح تم کو بھی ذلت اٹھانی پڑے اور قیامت کے دن برا دیکھنا پڑے۔ یہاں اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا وہ واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے اور وادی تین میں پہنچے، تو ان اسرائیل کے 12 قبائل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار منتخب فرمائے۔ ہر قبیلے میں سے ہر سردار جس پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہو اور اپنے قبیلے پر عہد پورا کرنے کی تاکید کرے اور ان کے حالات کی نگرانی کرے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد کیا تھا؟ نماز کی پابندی۔ دوسرا عہد کیا تھا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تیسرا عہد کہ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، اور چوتھا عہد اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت اور جان مال سے ان کی مدد کرنا ہے۔ ان میں سے پہلی
जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया वो दरअसल क्या था, इबादत बदनी है, यानी नमाज में इंसान बदन से इबादत करता है ना। फिर दूसरा जो ज़कात की अदायगी है तो वो क्या थी, दूसरी माली इबादत थी। और फिर तीसरी क्या है, कल्बी और लिसानी इबादत है, यानी कि अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान और जान माल से उनकी मदद करना, ये दरअसल क्या कल्बी और लिसानी इबादत थी। मगर बनी इसराइल ने एक एक अहद की चुन चुन कर खिलाफ वर्जी की और अपने अहद और पैमान को कौल और करार पर कायम न रह सके। नतीजे में उन्हें सजाएं भुगतनी पड़ी, जो कुरान पाक ने दूसरी जगहों पे जिक्र भी फरमाई है और बहुत सी जगह पे ऐसे उनके बारे में बयान फरमाया गया है। बनी इसराइल की बदअहदी को सुनाकर मुसलमानों को यहाँ तंबी की जा रही है, नसीहत दी जा रही है, ताकीद की जा रही है कि तुम क्या करना, तुम यहूद की तरह ना हो जाना, बल्कि जो जिम्मेदारियां तुम पर है ना उनको तुम्हें पूरा करना है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लेता है वो अल्लाह ताला से वादा कर लेता है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी जरूरी है, इसलिए उसका उनको पाबंद भी रहना चाहिए। और यहाँ पे जो अल्लाह ताला को कर्ज देने से मुराद है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं अक़रज़्तुमुल्लाह कर्ज़न हसना, तो अल्लाह को कर्ज देने से मुराद उसके दीन और उसके पैगंबरों की हिमायत और नेक कामों में माल खर्च करना भी है। ठीक है, आयत देखिए, आयत नंबर 13। फिर उन लोगों के अहद तोड़ने के फिर उन लोगों के अहद तोड़ने की वजह से हमने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। यह लोग शब्दों की उस जगह को से हेर फेर करके कुछ का कुछ कर देते थे और जिन बातों को उनको नसीहत दी गई थी उसका भी एक हिस्सा भुला बैठे थे और थोड़े लोगों के सिवा हमेशा उनकी खयानत की खबर पाते रहते हो, तो तुम उन्हें माफ कर दो और उन्हें छोड़ दो, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। दरअसल बनी इसराइल पर उनकी वादा खिलाफी, बदअमाली और सरकशी की सजा को दो तरह के अजाब आए। पहला तो जाहिरी था और दूसरा जो था उनके ऊपर रूहानी था। तो ज़ाहिरी और महसूस होने वाला, जैसे ज़ालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिए गए अल्लाह तबारक तआला की तरफ से, और फिर सल्तनत और हुकूमत का भी उनसे छीन लिया गया और वो कत्ल और कैदी और गुलामी की सजाओं में गिरफ्तार हो गए। दूसरी किस्म का जो अजाब जो रूहानी था, वो दरअसल क्या था, वो वायदा खिलाफी और सरकशी की सजाओं से उनके दिल और दिमाग क्या हो गए, मस्क हो गए, अकल काम नहीं करती थी, हक को सोचने और समझने की सलाहियतें उनसे छीन ली गई, नाफरमानियां और गुनाहों के बवाल में मुब्तला होते चले गए। यहाँ आयत में इसी दूसरी किस्म की सजा का जिक्र हुआ है। इस आयत में यह बतलाना मकसूद है कि अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ना कितना सख्त तरीन जुर्म है। यहूद ने ऐसा किया कि तो उन पर अल्लाह तबारक तआला की तरफ से लानत नाजिल हुई और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए और उनके दिल क्या हो गए, इसकी वजह से सख्त हो गए, सोचने समझने की क्षमता जाती रही। नौबत यहाँ तक पहुंची कि अल्लाह के कलाम में वो तहरीफ करने लगे, कभी उसके लफ्जों में, कभी उसके मानों में भी, और कभी उसमें जो हकीकी जो मतलब होता था ना उसको भी चेंज कर देते थे। जो मतलब हकीकी अल्लाह के कलाम का था उसका हेर फेर बदल करके दूसरा मतलब समझे और समझाने लगे। मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है कि एक गुनाह की जो नक़द सज़ा है कि उसके बाद दूसरे गुनाह की तरफ माइल होने लगता है। यानी कि गुनाह की सज़ा क्या है कि इंसान दूसरे गुनाह की तरफ दौड़ने लगता है। यानी एक बुराई और गुनाह दूसरे बुराई और गुनाह को ले आता है और इसी तरह एक नेकी दूसरे नेकी को दावत देती है। जैसा हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के असर से उसके दिल पर एक काला नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर अगर उसने गुनाह से पलट कर तौबा कर ली तो आइंदा गुनाह से बाज आ गया तो नुक्ता मिट जाता है। यानी जब इस्तगफार कर लेता है, अल्लाह से तौबा कर लेता है, तो फिर क्या होता है, उसके दिल से वो जो सियाह नुक्ता है वो मिटा दिया जाता है। और अगर उसने परवाह ना की और दूसरे गुनाहों में मुब्तला होता चला गया तो हर गुनाह पर काला नुक्ता बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल जो है, उसका कल्ब होता है जो पूरा काला हो जाता है, पूरा सियाह हो जाता है। उस वक्त उसके दिल की यही हालत हो जाती है कि अब वो किसी नेकी को जो समझता है ना वो किसी बुराई को कुछ समझता है। सही और गलत, सच और गलत में वो कुछ भी नहीं समझ पाता। उसकी जो है अक्ल सलीम खत्म हो जाती है, सोचने समझने की ताकत उसकी सल्ब कर ली जाती है। तो ना वो नेकी को समझता है ना बुराई को, बल्कि उसके उलटने समझने लगता है, यानी कि वो बुराई को अच्छाई समझता है, भलाई समझता है
और गुनाह को वो सवाब समझने लगता है और अपनी सरकशी में इतना बढ़ता चला जाता है कि उसके गुनाह की नक़द सज़ा है जो उसको दुनिया में ही मिलने लगती है। तो दरअसल इस आयत में बनी इसराइल को अहद को जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो उसकी सज़ा का बयान हुआ है, जिसमें उनको अहले इस्लाम को भी यहाँ पे नसीहत दी गई, यानी कि सारे मुसलमानों को यहाँ पे नसीहत और इबरत की तरफ है इशारा है कि जो मिल्लत, जो कम्युनिटी शरीयत इलाहिया यानी कुदरत के कानून से टकराती है ना, तो उसका यही हशर होता है। इसलिए हमने जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर और अल्लाह के दीन इस्लाम कबूल कर जिस पाबंदी को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, उसको पूरा करने की हमको तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस कलमे पर पूरे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज देखिए उम्मत मुस्लिमा सिर्फ ज़बानी कलमा पढ़ता है ना, इसका पूरा हुकूक नहीं अदा करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से तो कहता है, लेकिन क्या वाक़ई में वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फ़ॉलो भी करता है? यानी कि कहता है ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दरअसल वो क्या कर रहा होता है? अल्लाह के साथ औरों को भी शरीक ठहरा रहा होता है ना? आयत देखिए, आयत 14, ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون। और जो लोग कहते हैं कि हम नसारा हैं और हमने उन लोगों से भी अहद लिया था, लेकिन उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा भुला दिया गया, तो हमने उनके आपस में क़यामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे बहुत जल्द बता देगा। पिछली आयत में यहूद की बदअहदी और उनकी सज़ा का बयान हुआ। अब यहाँ इस आयत से नसारा यानी क्रिश्चियन का जो हाल है ना, उनकी बदअहदी और उनकी सज़ा को यहाँ बतलाया जा रहा है। नसारा, ये जो लफ्ज़ नस्र से है ना, नसारा लफ्ज़ नस्र से बना है जिसके माने होते हैं मदद के हैं। तो नसारा के माने क्या होते हैं? मददगार के हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, यानी हम हैं अल्लाह के राह में मददगार। तो जो लोग ईसाई मज़हब को मानते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंसार की तरफ निस्बत करते हैं। नसारा जो बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इंतज़ार में थे, उन्होंने क्या किया? उस अहद को तोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिर हुए, जब मबूस हुए तो उनका इनकार कर दिया और ईसा अलैहिस्सलाम के अहद को भी तोड़ डाला। इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने नसारा को अहद तोड़ने की ये सज़ा बयान की है कि उनके दरमियान आपस में मज़हबी झगड़ा, बुग़्ज़ और अदावत डाल दिया गया, जो क़यामत तक चलता रहेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनके अंदर भी कई फ़िरक़े हैं। एक फ़िरका है क्या नस्तूरिया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा कहता है। दूसरा है याकूबिया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के साथ मुत्तहिद यानी कि उनका अंश मानते हैं। तीसरा है मलकइया, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तीन इलाहा यानी ट्रिनिटी में का एक अंश मानते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर भी कई फ़िरके हैं। पहले यहूद की बदअहदी और उसकी सज़ा की हालत बयान हुई थी और अभी इस आयत में नसारा की बदअहदी उसकी सज़ा बयान हुई है, जिसका मकसद मुसलमानों को तंबीह करना है, नसीहत करना है कि ए मुसलमानों, तुमको उनसे सबक लेना चाहिए। बदअहदी से उनके अंजाम को भी क्या है, तुमको समझना चाहिए कि आज उम्मत मुस्लिमा में जो इतनी फूट है ना, उनके अंदर तो आप देखिए कि 3 ही फ़िरक़े थे, है ना? आज उम्मत मुस्लिमा में ना जाने कितने फ़िरक़े हो गए, अनगिनत फ़िरक़े हैं ना। कोई अहले हदीस, कोई जो है तबलीगी जमात, कोई बरेलवी, कोई हनफी, कोई शाफ़ा, इस तरीके से न जाने कितने आज फ़िरक़ों में बँट गया है। तो दरअसल वजह क्या हुई? वजह क्या है? वजह तो यही है ना कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम ही नहीं जाना। ना कुरान समझा, ना उसको फ़ॉलो किया, ना ईमान लाए, ना अल्लाह की किताब पढ़ी, ना ही उस पर अमल किया। तो सज़ा तो इंसान को भुगतनी पड़ेगी। तो आज मुसलमानों ने जब अपना काम छोड़ दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था उसको छोड़ दिया, तो सज़ा क्या हुई? ज़ालिम बादशाह हम पर मुसल्लत कर दिए गए। हमारी जो हम एक वक़्त था जो मुसलमान उरूज पर थे और आज क्या है, वो ज़वाल पर चले गए। आज सब तरफ से क्या है, मुसलमान रुसवा किया जा रहा है। क्यों? दरअसल वजह यही है, क्योंकि आज मुसलमानों ने ना अपना मिशन क्या समझ रखा है, बस दुनिया है। दुनिया के पीछे भागते हैं। तो आप देखिए कि दुनिया के पीछे भागने रोकने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसको अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाएँ, अपनी ज़िंदगी का गोल नहीं बनाएँ। दुनिया तो चले ठीक है हासिल करें, लेकिन साथ-साथ आखिरत को छोड़ करके नहीं, आखिरत को साथ ले करके चलें, आखिरत को साथ में टारगेट करके चलें। टारगेट तो हमारा क्या है, हमारा मिशन, हमारा गोल क्या है? आखिरत है, दुनिया नहीं है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा ने ना दुनिया को सब कुछ बना लिया और आखिरत को पीछे डाल दिया। इसीलिए आज उन पे रुसवाइयत और ज़िल्लत और ख्वारी सब कुछ चस्पा कर दी गई है। आयत 15, ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया है। जो कुछ तुम किताब में छिपाते थे, उसमें से बहुत सी बातें वो खोल-खोल कर
बता देता है और बहुत सी बातों को माफ़ कर देता है। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की किताब, अल्लाह की ओर से नूर और खुली किताब आ चुकी है। तो अब इन आयत में अल्लाह तबारक तआला ने अपने अहले किताब यानी यहूद नसारा का खिताब करके एक पैगाम हिदायत दिया जा रहा है। वो ये पैगाम है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब यानी कुरान मजीद देकर मखलूक की तरफ भेज दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत और दीन हक के साथ आए हैं। और जो बातें यहूद व नसारा ने बदल डाली थी उन सब की तावीलें करके दूसरे मतलब बना लिए थे। जैसा कि अल्लाह की ज़ात पर बहुतान बांधते थे ना कि अल्लाह की किताब के जो हिस्से अपनी ख्वाहिश और मंशा के खिलाफ आते उन्हें छिपा लेते थे और उन सब बातों को जो ज़रूरी थी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ-साफ वो ज़ाहिर करते थे। तो इन आयत के शान नुज़ूल के मुतालिक एक बार दरअसल मदीना मुनव्वरा में चंद यहूदी संगसारी के हुक्म के बारे में बातचीत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में सबसे बड़ा आलिम कौन है? यहूदियों ने कहा इब्न सूरिया की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमको उस अल्लाह की कसम जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाया था, सच बताओ क्या तुम्हारी किताब में जिना की जुर्म की सजा संसारी नहीं है? इब्ने सूरिया ने जवाब दिया कि आपने कसम दिलाई है और कसम भी इतनी बड़ी और इतनी सख्त दिलाई है इसलिए सही मामला जाहिर करना पड़ेगा। बेशक हमारे मजहब में इस्लाम की तरह जिना की सजा क्या है संगसारी है। लेकिन जब हमारी कौम में ज़िना की कसरत हो गई और ख़्याल हुआ कि अगर हम संसारी ही करते रह जाएँगे, तो एक दिन तो हमारी जमात बड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए हमने रजम के हुक्म को खुद बदल दिया। अब अगर कोई हमारी कौम में ज़िना करता है, तो हम उसको 100 कोड़े मारते हैं और सर मुंडवा कर मुँह काला करके शहर में फिराते हैं। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई जिसमें तमाम अहले किताब को खिताब किया जाता है कि ए अहले किताब तुम जो है ना बहुत सी बातें अपने मज़हब पे छिपाया करते थे। यानी उन्होंने ये रजम जो आयत रजम है ना उसको उन्होंने छिपाया और फिर मिसाल के तौर पे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात उन्होंने छुपाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, हुलिया वग़ैरह इस तमाम तरह तरह के जो अहकामात हैं ना उन्होंने सब कुछ छुपाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो पास भी आए वो जानते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं। इस बात को भी उन्होंने छिपा दिया। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए हैं ना जो तुम्हारे तुम्हारे बहुत से राज को वो ज़ाहिर भी करते हैं। तुम पहले दरअसल क्या थे? गुमराहियों में थे। गुमराही में पड़े हुए थे। हिदायत को छुपाया करते थे। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक रोशनी आ चुकी है। नूर, नूर आ गया है। नूर जिससे मुराद यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और जो किताब का जो ज़िक्र है इस आयत में तो इससे मुराद कुरान मजीद है। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर लोगों की जो जो वो चीज़ छिपाते थे उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर कर दिया। आयत 16 जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उस शख्स को जो उसकी रज़ा हासिल करना चाहता हो सलामती की राहें दिखाता है और अपने हुक्म से लोगों को अंधेरे से निकाल कर उजाले की ओर ले जाता है। अंधेरे से निकाल कर उजाले की ओर ले आता है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलाता है। बहुत खूबसूरत आयत है ये भी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हक और बातिल को वाज़ी फरमा दिया है। अब जो शख्स अल्लाह ताला की मर्ज़ी को पाना चाहता हो और अल्लाह का रास्ता तलब करने वाला हो, तो अल्लाह ताला उसको किताब के ज़रिए से उसको सलामती और निजात के रास्ते पर पहुँचा देता है और उसको रास्ता दिखा देता है, उसको सही रास्ते पे दिखाकर उसको मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा देता है। तो लेकिन जो इंसान जिसके अंदर रास्ते पर चलने की तड़प हो, ललक हो, हिदायत की तड़प और ललक ही उसको उस रास्ते तक पहुँचा सकती है। तो जो अल्लाह से माँगता है ना हिदायत और उसको फिर मिल भी जाती है। तो अल्लाह तबारक तआला उनको अपनी तौफ़ीक से अंधेरे और गुमराहियों से निकाल कर रोशनी और हिदायत की तरफ ले आते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि इंसान के अंदर अल्लाह के पहुँचने की मोहब्बत हो, तड़प हो, ललक हो और वो साथ में कोशिश भी करता हो। ऐसा नहीं कि तड़प और ललक है और हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो तड़प होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, साथ ही उसे कोशिश भी करनी चाहिए। आयत 17 बेशक उन लोगों ने इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह तो वही मरियम का बेटा मसीह है। तो कह दीजिए कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को, उनकी माँ मरियम को और जितने लोग ज़मीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसका बस चल सकता है? और अल्लाह ही के लिए बादशाही आसमान और ज़मीन की और जो कुछ इन दोनों में है उसकी भी। वो जो चाहता है पैदा करता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
ईसाइयों में दरअसल क्या है, एक फ़िरका याकूबिया था जो उलूहियत मसीह का अकीदा रखता था, और उनका कहना था कि हज़रत मसीह इब्न मरियम थे, मगर हकीकत में वही खुदा थे, और दुनिया के अंदर खुदा मसीह के रूप में ज़ाहिर हुआ था। ये इनका ऐसा अकीदा था। यानी उनके नज़दीक खुदा यानी अल्लाह मसीह की शक्ल में हुलूल किए हुए थे। नसारा एक तरफ तौहीद को ज़बान से इकरार भी करते थे, लेकिन अल्लाह एक है ना, इसका वो इकरार भी करते थे, लेकिन साथ ही में उन्होंने हज़रत ईसा मसीह को अल्लाह का यानी कि उलूहियत के भी वो कायल थे। यानी वो कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला हुलूल कर गए, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। तो इस तरह से उनका ये अकीदा था। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में उनके इस अकीदे को रद्द फरमा दिया है, और उनके इस कुफ्र को बयान फरमाया है कि उन्होंने अल्लाह की मखलूक को अल्लाह का दर्जा दे रखा है। हालांकि अल्लाह ताला तो शिर्क से पाक है, तमाम चीज़ें उसकी मखलूक और उसके उसके अधीन है, और हर चीज़ पर उसकी हुकूमत और मिल्कियत और बादशाहत है। तो इस तरह इस आयत में अहले किताब से पूछा जा रहा है कि मान लो अगर अल्लाह ताला अगर अगर अल्लाह चाहे कि हज़रत मसीह और उनकी जो वालिदा मरियम है ना, और जितने भी ज़मीन में कुल बसने वाले जितने भी इंसान और अंबिया और फरिश्ते और शोहदा और सालिहीन सबको इकट्ठा करके हलाक कर दिए, तो बतलाओ कि अल्लाह के इसके इरादे से कौन रोक सकता है? और अगर ऐसा करने से कौन उसका हाथ पकड़ सकता है ना? सारी मखलूक भी अगर जमा हो जाए, तो वो सब कोई कोई भी ऐसी किसी की कुव्वत नहीं कि वो अल्लाह के इरादे को थोड़ी देर के लिए भी बदल दे। तो दरअसल क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहिद है और अहद है, और अल्लाह तबारक तआला क्या है, वही अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। तो जो लोग मसीह को या ईसा इब्ने मरियम को या मरियम अलैहिस्सलाम को जो कहते थे कि ये माज़अल्लाह अल्लाह का अंश है या ये खुदा की माँ है, तो इस तरीके से उन सब की बातों का यहाँ रद्द है। और अल्लाह तबारक तआला ने एक उनको चैलेंज दिया है कि अगर बताओ कि अगर कोई भी होता ना, या ईसा अलैहिस्सलाम होते या मरियम अलैहिस्सलाम होती, तो जो भी कोई खुदा का दावा करता, अगर अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि इन सब के सब को ले आए, और जितने भी आज जिनकी भी परस्तिश की जा रही है सबको ले आए, जितने भी मज़ार वाले, कब्रों वाले और अंबिया और सिद्दीकीन और शहदा सालिहीन जिनकी भी अल्लाह को छोड़कर इबादत की जा रही है, उन सबको अगर वो बुला लें, और अगर अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि वो कोई भी उसके फैसले में कोई भी एक ज़रा रत्ती बराबर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो अल्लाह क्या है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, सिर्फ़ वही, उसी के लिए सारी ज़मीन और आसमानों की मिल्कियत है, बादशाहत है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो कुछ भी आसमान में है और ज़मीन में और जो कुछ उनके दरमियान है, वो पैदा करता है। यख़्लुक़ु मा यशाअ, जो वो चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैदा करता है जो वो चाहता है। और इससे ये भी पता चलता है कि एक जो अम, इलाह होती है, इलाह की सिफ़ात क्या है, वही पैदा करता है और वही मौत देता है। इलाह की सिफ़ात यही है कि वही ज़िंदगी देता है और मौत देता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इलाह होते, तो वो ज़िंदगी देते और वो मौत भी दे देते। लेकिन उन्होंने तो यही कहा था कि मैं ज़िंदगी देता हूँ, ये भी किसकी इज़्ज़न से? अल्लाह की इज़्ज़न से। हुँ? तो ईसा अलैहिस्सलाम इलाह कैसे हो सकते हैं? तो ईसाइयों की जो अक़ीदा है, उन सब का यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। और साथ ही मुसलमानों को भी अपनी इस्लाह करनी है कि जिन-जिन के पास वो एक औलाद के लिए जाते हैं, अपने दामन फैलाते हैं ना, तो ज़िंदगी तो देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो क्यों ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाके अपनी इस्लाह करें और अपने पिछले तमाम गुनाहों की अपनी इस्लाह कर लें। जो भी चाहिए, जो कुछ भी मन्नत मुराद अल्लाह से चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से माँगे, ना कि गैरुल्लाह के पास जाके। आयत 18। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम तो अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं, तो कह दीजिए, फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर अज़ाब क्यों देता है? बल्कि तुम उसकी मखलूक़ात में से दूसरी तरह इंसान हो दूसरों की तरह इंसान हो। वो जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीनों की, ज़मीन की, और जो कुछ उनके बीच है, और सब उसी की ओर लौट कर जाना है। सबको उसी की तरफ लौट के जाना है, यानी सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो यहाँ यहूद और नसारा का दावा नकल फरमाया किया गया है। नकल फरमाया गया कि वो ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं। यहूद और नसारा ये दावा करते थे, वो ये कहते थे कि हम क्या है, नहनु अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाहु, और उसके मोहब्बत करने वाले, उसके चहीते हैं, यानी अल्लाह हमको बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह के हम बेटे हैं और अल्लाह के हम बहुत प्यारे हैं और हम लाडले हैं। दरअसल उनके ये जो बातिल दावे थे ना, वो बातिल दावों में से एक दावा था, झूठे दावे थे उनके। दरअसल शैतान इंसान के पीछे पड़ा रहता है, ईमान और नेक अमाल से रोकने के लिए तरह-तरह की बातें वो समझाता भी है। इस शैतान ने तो कसम खाई थी कि अल्लाह, मैं तेरे बंदों के ना सीधे रास्ते पे मैं बैठूँगा, उनके दाएँ से आऊँगा, उनके बाएँ से आऊँगा, उनके सामने से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, हर तरफ से आके उन पर हमलावर करूँगा, और उनको सीधे रास्ते पे कभी चलने नहीं दूँगा। इस तरह से उसने वायदा किया था अल्लाह से। और शैतान ही क्या है, इस तरह से लोगों को अच्छे और ईमान वाले रास्ते से तरह-तरह की बातें समझा कर रोकता है।
उन्हीं बातों में से ये भी बात है कि उसने यहूद और नसारा को ये समझाया है कि तुम तो क्या हो, अल्लाह की औलाद हो और उसके महबूब हो और लाडले हो। तुम ईमान लाओ या ना लाओ, तो कैसे भी तुम अमल करो, तुम्हारा तो सब कुछ माफ़ है ना। आपको देखिए, ये जो बात है ना, जानी-पहचानी सी नहीं लग रही है। जानी-पहचानी सी इसलिए क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा का भी तो यही अकीदा है ना। वो यही कहते हैं कि तुम ना तो मुसलमान हो, तुमने तो सब कलमा पढ़ लिया है, अब तुम क्या करो, तुम नमाज़ पढ़ो ना पढ़ो, तुम रोज़ा रखो ना रखो, तुम सूद खाओ या ना खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने तो बस कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे पर तो क्या जन्नत वाजिब हो गई है। अब तुम अच्छे अमल करो ना करो, तुमने तो बस एक मुसलमान हो गए, तुमने कलमा पढ़ लिया, अब तुम्हारे लिए ही काफ़ी है। अब तो तुम मुसलमान होने ना, तुम तो बतौर मुसलमान मुसलमान होने की हैसियत से अब तुम क्या, तुम्हारे पर जन्नत तो वाजिब हो गई है। तुम कुछ छोटे-मोटे गुनाह करो, ठीक है, वो वक़्ती तुम्हें सज़ा मिल जाएगी, लेकिन तुम तो कहाँ जाओगे? दरअसल जन्नत में चले जाओगे। तो दरअसल क्या है, ये सब बिल्कुल इस तरह की जो बातें हैं, जो लोगों के दावे हैं, ये सब क्या है, इन सब का यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। दरअसल जन्नत किससे मिलेगी? एक तो पहली चीज़ तौहीद पर होगी, जो इंसान तौहीद पर डट गया। दूसरा क्या है, अमल सालिहात, फिर भी वो अमल सालिहात भी करता हो साथ ही साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे कर दिया, तो उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता है। यानी कि उसका जो नसब है, यानी कि अगर वो यहाँ तक कि अंबिया का बेटा हो, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अगर होता, तो वो भी उसको आगे नहीं कर सकता था ना, इतनी बड़ी बात कह दी गई। आप देखिए कि हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था ना, और उसको क्या किया गया? जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। फिर इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हैं, वो भी कहाँ जाएँगी? जहन्नुम में जाएँगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं ना, हसब-नसब किसी के कोई काम नहीं आता है। दरअसल काम क्या आएगा? ईमान और अमल सालिहात काम आने वाला है। आयत 19, ए अहले किताब, अब तुम्हारे पास हमारे रसूल आ चुके हैं। अब तुम्हारे पास हमारे रसूल आ गए हैं, जो तुमसे बयान करते हैं, जबकि रसूलों का सिलसिला बंद था, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला या सचेत करने वाला ही नहीं आया, यानी आगाह करने वाला ही नहीं आया। तो देखो, अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाले आ गए हैं, और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़त्रतिन मिनर रसूल, कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आया है, जो वाज़ेह तौर पर तुम्हें बताता है, और उसकी आमद ऐसे वक़्त में हुई जबकि रसूलों के आने का सिलसिला रुका हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले नबियों के आने का सिलसिला जारी था। एक नबी वफ़ात पा जाता था, तो दूसरा नबी भेज दिया जाता था। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद सिलसिला नबूवत रुक गया था। उन्होंने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक रसूल आएँगे जिनका नाम अहमद होगा। अहमद सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है। फ़तरतुल रसूल, फ़तरतिन मिनर रसूल, फ़तरा जो यहाँ पे अल्फ़ाज़ आया है, तो फ़तरा ए ज़माना फ़तरा, जिसमें हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला आना रुक जाए, सिलसिला रुक गया तो उसे फ़तरा कहा जाता है, तो उस ज़माने को फ़तरा कहा जाता है, ठीक है? ज़माना फ़तरा, जिसमें हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के आने का सिलसिला रुका रहा, उसको फ़तरा का ज़माना कहा जाता है। उसकी कितनी मुद्दत थी, इसके बारे में इमाम बुखारी ने अपनी सनद से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 600 साल का फ़ासला था। और एक कौल में 620 साल का भी नकल किया गया, और फिर फरमाया 600 और 620 में इस तरह का फ़र्क नहीं है कि जिसने 600 साल कहा, उसने 600 साल यानी कि क्यों कहा? शमसी कैलेंडर के हिसाब से, सोलर ईयर से मुराद लिए हैं, और जिसने 620 कहा, उसने 620 कमरी कैलेंडर यानी कि लूनर ईयर के लिए है, तो क्योंकि 100 साल शमसी में तकरीबन 3 साल कमरी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो फ़तरा का जो ज़माना था, उसमें जिहालत और कुफ्र, शिर्क, गुमराही का जो वो हाल था ना, यानी अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक़्त में भेजा, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एकदम रुका हुआ था। तकरीबन 500-600 साल के इस वक़्फ़े में हिदायत के रास्ते एकदम मिट चुके थे। दीन बिल्कुल बदल चुका था। बुत परस्ती, आतिश परस्ती, सलीब परस्ती का ज़ोर हो चुका था। लिहाज़ा आपको जो भेजा जाना दरअसल क्या है, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत थी, और आपकी तशरीफ़ लाने की सबसे ज़्यादा उस वक़्त ज़रूरत भी थी। तो ये दरअसल क्या है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए, तो दरअसल क्या है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक नियामत थी। तो इसमें चाहिए कि इंसान उस वक़्त सारे मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खबरदार करने वाले थे। आयत 20, और याद करो कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की है। उसने तुम्ही में से नबी पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ दिया
کہ دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی جو ہے نعمتوں کو یاد دلایا ہے کہ اے میری قوم نا، کہ اللہ کی ان نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر عطا کی تھی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں میں سے نبی بھیجا، یعنی کہ انسانوں میں سے نبی بھیجا اور تمہیں بادشاہت سے نوازا، تم کو بادشاہت دی اور تمہارے اندر مسلسل نبیوں کا آنا جاری رہا اور تمہارے لیے ہدایت کا انتظام بھی ہوتا رہا، اور تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو تم سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا، لیکن بدلے میں کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ بد عہدی نا، وعدہ کی خلافی کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کا کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ ان کو ان کے اوپر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔